Hello, friends, and like the way we have taken in the beginning two answers and then went for three answers. Now today we'll be taking up five answers in this session, and there will be series of increasing the number of questions as and when we feel like that it helps us in retaining more, it helps us in understanding more, and even writing more. So let's start with the same idea, zeal, and also understanding that what kind of answers must be there, which can help us in bringing good score and also at the same time a great satisfaction of the hard work that one do so that you are able to appreciate your own efforts. India's PDS requires an overhaul. Do you agree? Examine in the light of migrant crisis during COVID-19 pandemic. So it's a good and relevant question. It is directly asking you that it requires an overhaul or not. So do you agree? So rather than overhaul, you can talk about certain systematic changes, certain kind of systemic changes, which will be helping to bring your answer in the correct light. World's largest government-run food assurance program. It has enabled to overcome food insecurity in India, but needs more alignment. So I think it's correct language. It's okay. Targeted PDS to deal with the inclusion and exclusion errors, challenge of nutritional security, food fortification, golden rice, iodized salt, data-based redistribution of food grains as per needs in different states to stop wastage of food, provide diversified food grains a part of rice and wheat. It will enable a shift in cropping pattern towards millet and horticulture. Need to create a single window portal on the similar lines to ENAM to enable effective and hassle-free distribution. It can help increase labor productivity. During 19, One Nation, One Ration Card scheme help migrants. It will enable uniform migration pattern. Our PDS is a topic of debate in WTO, but for developing countries, allowed under agreement on agriculture. Given its impact on multi-dimensional poverty, the time period of PDS seems unending as of now. So it's a wonderful, wonderful flow and also very clearly written and structural approach. But there could have been more, bringing up of more higher phrases like what you can further bring under PDS or like bringing tribal and also certain models, for example, Chhattisgarh model or even Tamil Nadu model, how to make it more uh, how to make it more cost efficient and how to make it more effective. This could have been there, but then otherwise on general lines, the answer is on track. General structure is visible, general understanding is visible. And when we talk about overall, one could have also brought idea about artificial intelligence, also about tracking system, also about how ration shops could be modernized, how Anganwadi centers or even other kind of groups are there, or even self-help groups and MSMEs are there, how it could have been much more than just public distribution system. So it is not just about grains, it is about distribution of all kind of services by the public, for the public by the government. So couple of ideas could have been there with innovation and confidence if one is writing answer. That's what one can say. You can even call other candidates, Prerna, and just ask them to join in also if you think that one or two people can join right now. Explain the concept of Raman effect propounded by the eminent Professor C.V. Raman and show if it revolutionized the field of physics. A good question, a direct, clear question. One must know about Raman effect, Nobel Prize winner, scattering of light. We celebrate it at the National Science Day. I believe it is in the month of February. If I'm not wrong, kindly correct it. The incident light scatters into seven colors due to change in wavelength passing through solid, liquid, and gas. Basic concept has been provided. So blue color of ocean and sky, it happens because of molecules in sky, ocean scatter blue light. So you are actually putting it in a very simple way, identifying deep crack, construction and real estate industry, mineral exploration and nature of material via light beam, the amount of energy absorbed helps in the determination. Therefore, the Raman effect helps in propagation of fundamental duty to promote scientific temper. So a little fast last idea is very innovative and very, what I can say, different. But Raman effect, how it is actually linked with understanding of the nature of light, how it is linked with understanding that human being and also so many activities are there when we talk about science, in which there is interaction, constant interaction is there. So it is in this context, there could have been a broader scheme of things putting up, but then on the basic level and on the exam oriented level, when we talk about writing it in the exam like conditions, so structure, idea, and thoughts are emerging, and they are definitely one can read them. Challenges associated with disposal of biomedical waste, which are continuously being generated after COVID-19 pandemic. Explain the role of circular economy in meeting these challenges. So biomedical waste, equally important component of plant urbanization. Challenges
Waste segregation, lack of awareness is definitely there. Hospital waste, you can say it is a medical waste, that is what it is called. And biodegradable waste like cotton can be reused, recycled. So one has to understand that even in the medicine, there are chances of infection, there are chances of leading of diseases. So there are different ways and processes by which there must be by which we dispose of the medical waste. That's what I want to say. Exposure to toxic chemicals like mercury from thermometers can be fatal. So this could have been part of another point. Spread of rumors, COVID-19 waste, mask sanitizers, bottle PPE kit. So again, there is a proper way to dispose of different kind of waste material. Behavioral change, 3R, adherence to biomedical disposable rules, civil society organizations. So waste management rules would have been brought in here. Incineration would have been brought in here. Plasma technology would also been brought in here. And modern ideas what we speak about, if they would have come up, then answer would have been much more complete. So, but good effort, on track, and ideas are reflected. Ecotones, areas of great environment importance as well as most threatened ones. Ecotones are the regions of transition between two biological communities, marshlands, mangroves, grasslands. Wetlands also will be becoming part of it. Great environmental importance, biodiversity hotspots, mangroves of Sundarbans, carbon reservoirs, marshlands sequester 50% more carbon than the terrestrial forests, natural barriers to cyclones and tsunamis. Grasslands are critical for food production and pollination and waste regulation. I think very well written, simple ideas are there. Keywords must be appreciated, but the phrases are missing. There could have been much more punch in the answers, which will be coming up in the next level of thinking. But the first structure and the macro ideas are definitely appreciated. Frequency of forest fires have led to destruction of grasslands turning to barren wasteland. Australia, US forest fires. Bring Uttarakhand, bring parts of Telangana, bring parts of the certain states of India. In, for example, in West Bengal, it is happening. Concretization has led to removal of marshland, double whammy, release of carbon dioxide and greenhouse gases, reduced land water absorption, flat Chennai. This is also an example. The destabilization of food chain and future risk to food security, bringing the conclusion could have been much more in one or two lines, much more stable and much more confident. That will also be coming up. Potential of food processing industries, it's too high. It can really, it is a kind of a sunrise industry. It is a kind of helping India to become a 5 trillion economy. The question says that uh, major initiatives taken by the government in this direction and uska potential kya hai. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्ट्रेंथन करेगी, बैकवर्ड लिंकेज को बात सही है, लेकिन सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन लूपहोल्स को खत्म करेगी, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, हमारे जो इंडिया में जितना हमारा रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगी. ट्राइफेड उसका एक अच्छा एग्जांपल है, पर ट्राइफेड के अलावा बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एमएसएमईज हैं. अचार से लेकर, पापड़ से लेकर, पिकल से लेकर, फ्रोजन फूड से लेकर, मैरिन फूड जिसको हम कहते हैं उनसे लेकर, सब जगह इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो आपको ब्रॉड लिखना है. डबलिंग द इनकम बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है. और जो मॉनसून या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर हम जब बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रेगुलर इनकम, उसके बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है ये, इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए. ट्राइबल्स को एक आइडेंटिटी, ये जो आपने लाइन लिखी है जल्दी में लिखी है, मतलब आइडेंटिटी उनकी ऑलरेडी है, लेकिन आपको कहना चाहिए कि कैसे मेन स्ट्रीम इंडिया के जो पॉजिटिव्स हैं, जो हम बात करते हैं कि पॉवर्टी इलिमिनेट हो, कनेक्टिविटी हो, हम बात करते हैं कि सबको गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिले, ये सारी जो चीजें हैं ये जुड़ी हुई हैं आपस में. तो वन धन योजना, टेक फॉर ट्राइबल्स, R&D ट्राइब्स, तो इसमें लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए तो मेगा फूड प्रोसेस जो आपने लास्ट में बोला सबसे पहले आना चाहिए था. उसके बाद आपको इसमें इंडस्ट्री की बात करनी चाहिए थी, आपको इसके अंदर FDI की बात करनी चाहिए थी, इसके अंदर आपको बात करनी चाहिए थी कैसे ट्रेनिंग के बाद किस प्रकार से हम लेवल को रेज कर रहे हैं, कैसे ये एक तरीके से सस्टेनेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दैट वुड हैव गिवन अस मोर एज इन द आंसर, बट अदरवाइज ऑन ट्रैक. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जब बात की तो भारत सरकार वंचित, आर्थिक रूप से असमर्थ, बिल्कुल सही बात है. चावल दाल बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध कराती है. पोषण अभियान की आपने बात बिल्कुल सही की, पोषण 2.0 की बात भी बिल्कुल सही की, आंगनवाड़ी की बात भी बिल्कुल सही की, भंडार डिपो की बात भी की. आधुनिकीकरण कैसे, आपने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की, डिजिटल लिंक आधार कार्ड की बात की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की, वेब सिटीजन पोर्टल की बात की, COVID-19 की बात की. आई थिंक अच्छा कोशिश है, अच्छा तरीका है. टीकाकरण की भी बात की, लेकिन आप बताइए कैसे आने वाले समय में और अच्छा हो सकता है, बताइए कैसे इसको कैसे जोड़ा जाए, वो आइडिया आने चाहिए.
सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की आपने बात की, सिद्धांत लाइट स्कैटरिंग के माध्यम से हमने जाना किस प्रकार ट्रेवल करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है। नीले की वेवलेंथ सबसे कम है, आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा लिखा। बेसिक आइडिया ऑन ट्रैक है, चलिए आगे। और आपने प्रभाव बताया कि कैसे कम फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, और थोड़ा बताते हैं उसका टेलीकम्युनिकेशन से लेकर बाकी जगह जो इम्पैक्ट है सिग्नल ट्रेवल का और बाकी चीजों का, वो लेके आना चाहिए था। दैट इज इंपॉर्टेंट। कोविड 19 बायोमेडिकल कचरे की जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कहा बायोमेडिकल पे फोकस कर रहा है, तो वेस्ट सेग्रीगेशन की जो बात होती है, जैसे हमने पहले आंसर में पढ़ा, वो सबके लिए है, लेकिन बायोमेडिकल जब ऑलरेडी बोल रहे हैं तो उसके अंदर भी ठीक है, मैंने माना उसके अंदर भी एक सिस्टमेटिक सेग्रीगेशन होना चाहिए। समस्या तो है, खतरनाक भी है, निपटारा करना भी जरूरी है, खुली और सुनसान जगह पर नहीं फेंक सकते। तो उसके लिए आपने जैसे लिखा, आपने उसको सिटीज, ग्लूकोज बोतल, ये सारी बात, जो खराब दवाइयाँ, एक्सरे रिपोर्ट, उसके लिए भी एक तरीके से पूरा टेक्नोलॉजिकल बेस होना चाहिए जिससे आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। क्योंकि डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आप, कानून है, लाल काले नीले पीले बैग का कचरा, आपने कहा सूखा कचरा गीला कचरा, तो ये है। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अपने उसके लिए गाइडलाइंस हैं, जैसे एम्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी समय समय पर बात बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इससे बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। तो वो सारी बातें आपको लेके आनी चाहिए कि कैसे आखिर उसका निपटारा करें, क्या उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत है। नोडल फूड ऑफिसर होता है, वो सारी चीजें, हेल्थ ऑफिसर होता है, सारी चीजें लेके आइए उसके अंदर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता का परीक्षण जब हम बात करते हैं, तो पर कोल्ड चेन, इस आंसर में आपने बहुत अच्छा जोड़ा, सागरमाला। उसके बाद अब शबरीमाला आप क्यों लेके आए, ये सोचने वाली बात है। भारतमाला तो ठीक है, लेकिन सबरी वाला आपने, हो सकता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ जल्दबाजी में आपने लिख दिया हो। सबरीमाला नहीं है, भारत माला है, और सागर माला भी है, सबरीमाला नहीं है। लेकिन एग्जामिनर कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो जानते हैं कि अंडर प्रेशर गलती से लिखा जा सकता है, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपने लेकिन जो अच्छी बात लिखी है, आपने आजीविका की बात की, आपने प्रोत्साहन की बात की, दीनदयाल अंत्योदय योजना को जोड़ा, आपने प्रधानमंत्री वन धन योजना और एकल स्कूल मॉडल से आपने शिक्षा की बात भी जोड़ी, पीवीटी जिसमें भी जोड़ा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेगा फूड पार्क्स बनते हैं, मेगा फूड पार्क्स के अंदर फिर शॉप्स अलॉट की जाती हैं, उसके बाद एक्सपोर्टर्स को मौका दिया जाता है, वो सारी बातें भी लेके आइए। पीडीएस नेशनल फूड सिक्योरिटी अच्छा है, अप्रोच डिफरेंट है पहले दोनों आंसर से। पीडीएस सिस्टम में आपने बॉटलनेक्स की बात की, आपने बात की रेगुलरिटी है, क्वालिटी की बात की, बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक की बात की, लीकेज और डाइवर्शन की बात की, कोविड की बात की, फिर आपने उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की, कॉम्प्रेसिव ऑनलाइन डेटाबेस एंड पेमेंट की बात की, 5 केजी चावल 1 केजी राइस, इस सब वाली बात की आपने, योजनाओं की बात की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की। तो ठीक है, पहले सारे आंसर्स में से इन आंसर में अगर हम नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो ज्यादा है, लेकिन स्ट्रक्चर के मामले में सारे आंसर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीवी रमन साहब की, तो उन्होंने नोबेल प्राइज विनर की आपने बात की, रमन इफेक्ट की बात की, चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल, आपने ब्लू कलर को आपने समझाया, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को समझाया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझाया, लेजर लाइट, ऑप्टिकल फाइबर, डीएनए स्टैंडिंग, इमेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई थिंक गुड वंडरफुल एग्जांपल्स आर देयर। रमन इफेक्ट से 1928 में हुआ, इसलिए नेशनल साइंस डे मनाते हैं। डेली लाइफ में आता है, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स का पार्ट है। ये बाद वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, और पहले वाले आपको एप्लीकेशंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपने बात की, तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा सटीक होइए और थोड़ा फोकस बताइए। बायोमेडिकल वेस्ट में आपने बताया कि कोविड 19 का चैलेंज बताया, आपने फिगर भी दिया 56 टन। ओके फाइन, ज्यादा होगा, आई एम श्योर ये कम है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, आपने ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की बात की, फ्लोरा फाउना की बात की, उससे जो खतरे आपने बताए, हेल्थ रिस्क की आपने बात की, और उसके बाद आपने बात की कैसे उसका जरूरी है, हेपेटाइटिस और उन सब चीजों की आपने बात की। सर्कुलर इकोनॉमी, ये जोड़ना आपने जोड़ा, पहले वाले आंसर में नहीं था। पीपीपी किट्स हो गई, या फिर अब आपने रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया, उनका अपना एग्जांपल दिया। गार्बेज मैनेजमेंट की आपने बात की, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की, कोची कॉर्पोरेशन की बात की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेग्रीगेशन, येलो हाईली रेड रिसाइकलेबल, व्हाइट निडल। आई थिंक वंडरफुली डन। और सारे आंसर्स में जो अब तक बात की जाए, दोनों आंसर्स में आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इकोटोन ट्रांजिशन आपने बताया, दो इकोसिस्टम के बीच में, बायोडाइवर्सिटी की बात की, रिचनेस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। आई लाइक द लास्ट वर्ड बटरफ्लाई, जो आपने एग्जांपल दिया, दैट इज आई थिंक वंडरफुली डन। थोड़ा और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, यू कुड हैव विद मोर कॉन्फिडेंस यू कुड हैव रिटन। फूड रिसोर्सेज की, जब हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं, फूड और फ्रूट की है, हनी आएगा इसके अंदर, हनी आएगा, पिकल आएगा इसके अंदर, फ्रोजन फूड आएगा, पापड़ आएगा,
उसके बाद छोटे छोटे जितने भी आपके जो सॉस से लेकर और चटनी से लेकर सभी कुछ आपका फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, जो भी चीज आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो उसका गढ़ है, जहां पर घट घट के ऊपर चीजें बदल जाती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का तो हमारे यहाँ अनंत स्कोप है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी का स्कोप है, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास फूड का स्कोप है, उसका सर्टिफिकेशन का स्कोप भी है। आप एफएसएसएआई का रोल भी इसमें लेके आ सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड भी इसमें आप लेके आ सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आपने बिजनेस मार्केट की बात की, ट्राइबल पीपल लोगों के लिए बात की, उड़ीसा के लिए बात की, और उसके बाद जो है मेगा फूड पार्क का आपने एग्जाम्पल दिया। और थोड़ा कॉन्फिडेंटली ब्रॉड हो सकता था, पहले के आंसर्स को दोबारा देखिए तो आप वो एलिमेंट्स लेके आ सकते हैं। इंडिया की पीडीएस में फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वॉलिटिलिटी है फूड ग्रेन के लिए, एनएफएसए 2013, और आपने एफसीजेड 1965 एक्ट की बात की आपने। उसके बाद जो है कोविड-19 पैंडेमिक, माइग्रेंट्स की शॉर्टेज जो उन्हें प्रॉब्लम हुई, पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव की आपने बात की, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आपने बात की, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की। चलिए, ओएनओआर के अंदर ईज ऑफ सर्विस, क्वालिटी, साथ में ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस ग्रीवेंसेस की बात की। टाइमली प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन इज एन इशू, डिजिटल डिवाइड, लेस स्पेस स्टोरेज। तो सारे जो पहले एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को आपने भी पुटअप किया, थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा है। देयरफॉर सम ऑफ द सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स यूजिंग ई पॉस, प्रोक्योरमेंट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी मेंटेन हो, लीकेज और उसके बाद जो बीच में डाइवर्जन है वो सब खत्म हो और बेनिफिशियरीज को मिले। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, पिछले वाले आंसर्स के मुकाबले बस स्ट्रक्चर इसका ज्यादा अच्छा है। दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नेचुरल फिनोमिना, रेनबो के टाइम बनता है, विजिबल नॉन विजिबल लाइट होती है from gas, liquid and solid, can be studied using Raman spectroscopy. This is a good word. Nature of scattering at certain angle, specific होता है हर एलिमेंट के लिए, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए उसको रमन इफेक्ट कहा जाता है। ब्लू लाइट, जैसे ये एग्जांपल पहले भी दिया गया वैसे ही सेम दिया गया। रिवोल्यूशनाइज फिजिक्स बाय फाइंडिंग distant stars and supernova explosion. Now this is the correct way to put how कि उस impact क्या है, application क्या है। Analyzing compounds and metals found at surface of moon, Mars, spectrography। तो proper answer है, सिंपल भाषा में लिखा गया, इफेक्ट ऑफ फोटोन इन स्टडिंग द क्वांटम फील्ड इंटरैक्शन एंड प्रिडिक्टिंग ड्रग रिएक्शन इन बॉडीज, फॉर एग्जांपल गोल्ड मोनोपार्टिकल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। दस रमन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज टू फिजिसिस्ट क्यूरियोसिटी। आई थिंक wonderfully done. Biomedical waste are those waste which are utilized in hospital, surgery, waste of medicine, chemical, pharma plant, ठीक है। Challenges, seepage and infecting harmful pathogens to rat pickers, not just rat pickers but to the whole environment and to the whole ecosystem. Drug resistant bacteria बढ़ सकता है बिल्कुल, affecting species animals, बात सही है। Local bodies, restricted finance, autonomy, इंसिनेशन, बायोमेडिकल डंपिंग ग्राउंड, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2018 नॉट अडरिंग टू। बताइए बायोमेडिकल 2018 के रूल को कैसे अडर किया जाए, उसका पार्ट क्या है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी बॉडीज उसको कैसे और ज्यादा प्रमोट करें। रोल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी में आपने ईपीआर का वर्ड डाल के मार्क्स को बढ़ाया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, जैसे आपने बात की कॉटन क्लोथ, ये प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर एग्जांपल मैशो क्लोथो, आई डोंट नो, आई कैन रीड आउट व्हाट यू आर राइटिंग। एक्सेसिबिलिटी एंड ईज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टेबल हॉस्पिटल्स एंड आरोग्य मैत्रिक, ठीक है। वेस्ट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, रीयूज, ठीक बात है, इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। लैंडफिल, इंजीनियर्ड लैंडफिल होना चाहिए ताकि वो लैंडफिल कभी भरे ना। इकोटोन्स आपने बताया ग्रेट एरिया ऑफ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्यों है। कन्वर्जेंस है इकोलॉजिकल हैबिटेट शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, आपने बताया इकोटोन, सीवीड्स, टर्टल, फिशेस, एंडेमिक स्पीसीज, मैरिन बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव का एग्जांपल लिया, रिच स्पीसीज, किडनी टू द एनवायरमेंट, हैबिtat टू ह्यूमन लाइवलीहुड। लिटोरल जोन्स ऑफ रिवर, इज इट सेडिमेंट फर्टाइल, क्रॉप डाइवर्सिटी, थ्रेटेंड कैसे हैं। सुंदरबन मैंग्रोव की आपने एग्जांपल दिया। डिफॉरेस्टेशन, हाई एक्सप्लोटेशन, फॉरेन टिम्बर, उसके बाद हाई क्वालिटी, सैलिनिटी ऑफ वाटर इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। पानी इतना खारा हो गया है कि वो बहुत खतरनाक हो गया है। फिशिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज, इंक्रोचमेंट, concretization, littoral regions of river, sand mining near the river for construction activities. Even sand mining itself is, सैंड माइनिंग की तो चोरी है। जैसे बिहार में 70% लॉस सरकार को होता है बिकॉज ऑफ द सैंड माइनिंग, यू कैन से ट्रैफिकिंग। रिक्लेमेशन ऑफ रिवर बेड फॉर एग्रीकल्चर, द इकोटोन नीड्स कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, दिस विल बी डन बाय वर्किंग ऑफ लोकल बॉडीज। चलिए, एग्जामिन द फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो दैट इज व्हाई वी आर ऑल फोकसिंग ऑन ओडिशा ही क्यों लेते हो आप, तमिलनाडु भी ले सकते हो, नीलगिरी ले लो, केरला का एग्जाम्पल ले लो, राजस्थान ले लो। मतलब थोड़ा बहुत पुश करते ही हमारा आंसर और थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकता है। सिनर्जी बिटवीन माइनस फॉर प्रोड्यूस, लोकल प्रोड्यूस विद इंटीग्रेटेड एफ एम सी एच,
FMCG सर. FMCG. Oh. So you have to be make sure you have to be sure Yes. that वो full form में है, because nobody has the benefit of doubt. श्रीनगर एप्रिकॉट टी आपने सारा बताया, तो उसको ट्राइबल के साथ जोड़िए, जैसा कि हमने पहले भी बात की. पोटेंशियल है इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, उड़ान 2.0, राइज इन 2-3, डिजिटल पेनिट्रेशन, हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, मेगा फूड पार्क. सिक्किम की बात है, राजस्थान की बात है, आंध्र प्रदेश की. अपेडा का रोल लेके आइए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक फूड्स में, उसको सर्टिफाइड करने में, एक्सपोर्ट में बहुत मदद मिलेगी. जीआई टैग, रोल ऑफ आईपीआर. ट्राइबल को थोड़ा जोड़िए हल्का सा, बाकी सारा ठीक है. आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक, वंडरफुल रिटर्न. ट्राइबल आपको लेके आना चाहिए था वर्ड, बाकी नथिंग टू मच फियर अबाउट इट. पीडीएस गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक बात है, हमने बात ये की. चैलेंजेस हैं स्टेट स्पेसिफिक एंड लैक ऑफ माइग्रेशन ऑफ राशन कार्ड. तो हमने बात पहले ही की कि वन नेशन वन राशन कार्ड की आपने बात कर दी, तो ये अपने आप में नलीफाई हो जाता है. इसको रिफ्रेश करने की सर जरूरत है. करप्शन. सर यहाँ पर चलिए. एग्जामिन इन लाइट ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस ड्यूरिंग द कोविड-19 के समय था, उस समय का. बिल्कुल. तो वहाँ पर माइग्रेशन कार्ड का इशू था. हाँ, उस समय था, लेकिन वी इफ वी सी फ्रॉम द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, तो यस. आंसर बिकम्स डिफरेंट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वी हैव टू पिक अप द आइडियाज व्हिच वी कैन टेक अप इन द फ्यूचर आंसर्स. यस. करप्शन एंड कन्वर्जन ऑफ फूड ग्रेन, ये बात बिल्कुल सही है. एनएसएस 68 रिपोर्ट ये लेके आनी चाहिए आपको भी. एक्सक्लूजन एरर बताया कि 63% थे, वो कम होने चाहिए. एंड टारगेटेड पब्लिक टीपीडीएस, इसकी बात करिए. वे फॉरवर्ड में वन नेशन वन राशन कार्ड की हमने बात की. पार्था मुखर्जी कमेटी की इन्होंने बात की, हमने नहीं की. डीबीटी की हमने बात की, शांता कुमार कमेटी की बात हमने नहीं की. बाकी आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक, वंडरफुली रिटर्न. रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन, नोबेल प्राइज 1930. When light passes through a transparent medium, color of the light doesn't come out straight. Rather, there is a scattering of some amount of light. This is known as Raman scattering. कैसे? It revolutionized the field of physics. Raman spectroscopy हमने ऊपर भी लिखा. Analyzing and understanding the variety of substances, medical uses. So our answer was much more broader, much more deeper. And one of the answers was talking about so many things, like gold used in Thanjavur painting. This is a good example. And Raman effect is found in all spheres of our lives. Science Day, 28th February, as I told you. चलिए. Biomedical waste, result of medical healthcare, biological procedures. कोविड-19 इन्फेक्शियस नेचर हमने बात की. लैक ऑफ प्रॉपर हमने बात की. नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत सारा हमने ये बात भी की. पीपीई किट्स हमने भी ये बात की. चलिए आगे. लैक ऑफ स्किल्ड, बिल्कुल सही बात है. वेस्ट कलेक्टर्स नहीं है. पुअर सेग्रीगेशन भी है. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 है. वो क्या करें? सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज, रिपेयर हमने बात की. तो आई थिंक नथिंग मच टू टेक अवे फ्रॉम हियर. ऑलरेडी वी आर मूविंग विद कॉन्फिडेंस ऑन दीज लाइट. इकोटोन्स, दो इकोसिस्टम जब मिलते हैं उनके बीच का एरिया आप बात की, हमने बात की. पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यूनिक बना देते हैं. मैंग्रोव्स है. यूनिक फ्लोरा फौना हमने बात की. एज अफेक्ट वी डिडंट स्पीक अबाउट. उसके बाद जो है economically important and all those things already we have been speaking about. Move further, please. Threats, over exploitation, overfishing, deforestation, pollution, climate change, proper regulation हमने बात की. Environment Protection Act की बात हमने नहीं की. कोस्टल रेगुलेशन जोन वर्ड हमने यूज नहीं किया. EIA वर्ड हमने नहीं यूज किया. बाकी सारे एलिमेंट्स विजिबल थे. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर 8.8% ऑफ इंडिया GVA एंड 10% टोटल एक्सपोर्ट्स, ऐसा हमने बात नहीं की. सनराइज इंडस्ट्री वर्ड मैंने आपसे बोला था, हमने वर्ड यूज नहीं किया. इकोनॉमिक बेनिफिट्स MSP एंड MFP की हमने बात नहीं की इस तरीके से. ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी प्रोसेस्ड, ये बात, ये लाइन नहीं है. बाकी आपके एलिमेंट्स हैं. और ट्राइबल सेंटर्स क्रिएट करने की बात हमने की. हब एंड स्पोक मॉडल वर्ड वाज नॉट देयर इन आंसर्स. वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमने की. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे कलेक्ट करेगी वुमेन, इसकी बात हमने नहीं की. उसके बाद पीएम किसान संपदा योजना की हमने बात नहीं की. इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग चेन की, ट्राइफेड स्कीम की बहुत अच्छे से हमने डिटेल में बात की, लेकिन हमने उसको ज्यादा ब्रॉड दे दिया. एंड देन बायो बैम्बू इकोनॉमिक्स की बात हमने नहीं की. सो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच कैन ऑलवेज बी टेकन अप, बट देन अदरवाइज आंसर्स you can see and understand with your own confidence and clarity that they are also getting on track, and you are also moving with the same confidence and speed. You can stop the screen sharing. Thank you very much. So Prerna, what do you say? Yes, so what I understood was कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से पॉइंट्स तुम्हें हाईलाइट करने हैं मतलब आंसर में.
क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लगता है ना कि ये भी डाल दे जरूरी है जो, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपर का आंसर वाज लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और प्रेजेंटेशन वाज आल्सो वेरी क्लियर। तो और जो बाकी आंसर्स थे उसके अंदर कोई उसके आसपास पहुंच रहे हैं तुम्हें लग रहा है धीरे धीरे? यस सर, मतलब सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज है, कौन किस चीज में कैसे बेटर लिख रहा है, बट हम्म, ओवरऑल आंसर मतलब अच्छा होना चाहिए ना, वो मैटर करता है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, हाँ। हो रहा है सर, थोड़ा ओके। फास्ट पेस पे हो सकता है, हम्म। हो रहा है। थोड़ा फास्ट पेस पे मतलब? एज इन स्पीडीली ज्यादा इम्प्रूवमेंट और ज्यादा कम टाइम में। अच्छा, ये बात पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि प्रेरणा हमें बताएंगी कि कम टाइम में ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, तो हम जरूर इस बात को लेंगे यस। फिर कभी। सो दिव्या। ये सर, सर रिपोर्ट्स को और अथॉरिटीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली, कि किस तरह और से वो उसको अलग बनाएगी, और सिंपल रख सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं, बजाय सिर्फ लिखते जाओ उससे नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए, लिखने पढ़ने में आसानी। ठीक है, आ रहा है। और बताइए आंचल। सर मेन तो ये है कि जो डाटा था ना, मतलब जैसे कोई परसेंटेज पता होनी चाहिए थोड़ा सा, तो फिर वो भी हमारे आंसर्स को थोड़ा अलग बना सकता है, तो फिर उस पे बाकी थोड़ा मेरे वर्क हिसाब कर से सकते हैं, कमेटी को मेंशन। हाँ जी। हाँ, बाकी मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। सभी लोगों के हाँ जी। स्ट्रक्चर हिसाब से बन के आ रहे हैं कि वो आंसर समझा पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा टेक अवे हम्म। कि जो पूछा जा रहा है वो बात लिखी जा रही है। थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है लेकिन वो भी प्रैक्टिस, अलर्टनेस और डिस्कशंस और कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों से आई थिंक वो कवर अप हो सकता है। आशिक। तो मेरे को हैंड राइटिंग में थोड़ा और फोकस करना है ताकि हाँ। काम रहे रहे। बाकी सर आई थिंक आंसर मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक लिखा, कोविड-19 के अराउंड ही लिखा, वो पीडीएस वाला क्या क्या हम्म, चाहिए, क्यों आप पूछा भी ठीक था है, कि देखिए इन वो लाइट ऑफ। कोई इशू नहीं, ये आंसर पहले से लिखे हुए हैं और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन द गिवन टाइम फ्रेम और इन द और गिवन सर माइंडसेट, इन द गिवन टाइम पीरियड हम कैसा लिखें। ये मत मैंने भी भूलिए। सर आज टाइम के हिसाब से 40 मिनट्स में लिखा था इसको, 8 into 5, तो से बीच में बिल्कुल, तो कुछ आंसर में कम था, किसी में ज़्यादा था। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन अप। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो आने वाले 5 सालों में जनरेटिव एआई जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर में भी हमने की, उससे हम कितने ट्रिलियन इकॉनमी हमारी बढ़ सकती है। फिर उसके बाद अगर हम डेटा ऐसे ही आता है, डेटा जैसे अब आप बात करो कि इंडिया में जैसे आईआईटीज हैं, जो सेकंड जनरेशन आईआईटीज हैं, अगर वो अपने आप को और अच्छे से यूटिलाइज करें तो वो छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्राइबल्स को हेल्प कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीनें दी जा सकती हैं ट्राइबल्स को, फूड प्रोसेसिंग जब हम बड़ी इंडस्ट्री की जगह छोटा लेवल पे हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप ट्रेन कर सकते हो, पापड़ है, अचार है, फ्रोजन फूड है। फ्रोजन फूड की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके कोस्टल एरिया में होगा, वो केरला में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, पंजाब में नहीं हो सकता हो। लेकिन जो यस। पंजाब में हो सकता है वहाँ नहीं हो सकता। तो बैम्बूनोमिक्स की अगर आप बात करो तो नॉर्थ ईस्ट की बात है, हर जगह का अलग है। कहीं पे नॉन वेजिटेरियन फूड होगा, कहीं पर वेजिटेरियन फूड होगा, कहीं पर जो है पापड़, अचार, और उसके बाद जो है चटनी, गार्लिक सॉस, ये सब चीजों की हो सकता है। अब चाइनीज सॉस ही क्यों हो, इंडियन सॉस कहाँ गया? अरे इंडियन तो स्पाइसेस का राजा है भाई। यस। तो उस एंगल से हम देख सकते हैं। तो आई थिंक ऑन ट्रैक है, लेकिन लेट्स मूव ऑन विद द सेम अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी एंड ब्रिंग आइडियाज एंड डेटा इनटू इट। जैसे अभी जैसे हमने बात की थी कि स्ट्रक जैसे कि हम एंटी डिफेक्शन की जब बात कर रहे थे तो स्ट्रेटेजिकली इंजीनियर किया जाता है उसको, स्ट्रेटेजिकली इंजीनियर। तो जब जब भी इफ यू गो बैक एंड चेक आउट, देन देयर हैव बीन वंडरफुल आर्टिकल्स व्हिच स्पीक अबाउट कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ में चेंजेस क्या आने चाहिए। इस पे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का अपना राय रहा है। तो उस चीज पे भी हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आई थिंक ऑन ट्रैक एंड पुश तो करना ही है, लेकिन जैसा प्रेरणा ने हम सबको बताया कि कम समय में ज्यादा होना चाहिए, तो वी विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो एंड इट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच, विल गेट बैक सून, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।